بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. دنیا میں پورے عالم میں فتنہ برپا ہو رہا ہے. ہر شخص پریشان ہے, کوئی امن میں نہیں ہے. سوچو کہ یہ پریشانی کیوں آئی, یہ غور کرنا چاہیے. پریشانی کے اسباب کو میں نے اختیار کیا, کہتے پریشانی کیوں آ گئی, کہ یہ چیز قابل اصلاح ہے. اسی لیے تمہارا تعلق اللہ گھٹ گیا, اللہ والے پاس جاتے نہیں, ان پہ اعتراض کرتے ہیں. اسی لیے تنزلی شروع ہو گئی. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. جو نعمت دی ہے مالک نے تم کو, تم اس کو استعمال کرو بندہ بن کر. تو ہم کرتے باغی بن کر. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ چلیں. گھر والے کچھ بھی کہتے رہے, کوئی بھی جائے, اس پہ کوئی وہ نہیں کرنا. اپنے ذمہ بات کو پہنچانا, منوانا نہیں. ایک سا اطلاع صاحب کے ہمارے گھر والے پورے بدعت طرف جا رہے ہیں, اس پر دماغ معذور نہیں چاہ رہے. وہ ان کو اصل میں کیا سمجھایا ہے, 2 جملے ہیں صرف, میرے ذمہ پہنچان منوانا ہے. نبی نے فرما دیا وما علینا الا البلاغ, میں نے بات پہنچا دی بس, کوئی داروغہ تھوڑی ہم. جبر کرو گے فساد پیدا ہو جائے گا. نافرمانی کرے اولاد دی بیوی سب مبتلا ہو جائے گا. گھر والے نافرمانی, حکمت عملی سے کام کرو. آپ نے حکمت عملی سے ایمان پیش کیا. قریش مکہ سب کفر مبتلا تھے. کبھی نہیں کہ لاٹھی ڈانٹا پٹ سے کچھ نہیں, بڑے اچھی حکمت بات پیش کی اور پھر کامیاب ہو گئے. ایسی کام تو کرو, لیکن چونکہ منمانی ہوتے, خود غصے کے مریض ہیں, اس پہ تیسمت آ جاتا ہے انسان. یہ لے کے اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں, دعا, تدبیر اور علاج. ایک سال اطلاع کی کل مجھے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, لیکن اللہ فضل ہے کہ قابو میں رہتا ہے. آتا بہت شدت سے ہے. یہ کیوں؟ صحبت کی برکت سے. غصہ نفسی بری بات تو ہے نہیں. امام شافعی نور فرماتے ہیں کہ جو غصہ نہ اسے وہ گدھا ہے. غصہ تو آنا چاہیے, ورنہ جہاد کیسے کرو گے. غصہ غیر شرعی اوپر آئے, اسلام کے خلاف بات نہیں سن سکتا ہے. تو مجھے خوب برا بھلا کہہ دو, میں کچھ نہیں کروں گا. لیکن دین میں اگر تم نے کوئی فی نکالی, یا تم نے یا ہم نہیں, اس کا نام ہے. اس لیے پہلے خود بھی اصلاح کرو کہنے سے پہلے. پھر اپنے کو سمجھا کہ میں تو بہت کامل تو اتباع کرتا ہوں, یہ نقص کی بات ہے, یہ خامی کی بات ہے. کتنے عیب بھرے ہوئے ہیں, نہیں ہم تو کامل ہیں. یہ بات ہے کہ تم کبھی ہوا نہیں لگی, جوش میں تو ہوش نہیں تمہارے اندر. اس لیے پھر ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. یہ اللہ پناہ میں رکھے. ہاں یاد رکھو, بہت چیزیں ہوتی ہیں. دماغ اللہ نے عطا فرمایا, اس نے نعمتوں کو ہم استعمال کرے بندہ بن کر. اس نے کہا میری بندگی کرو. یہ سر میرے تو جھکانا, آج ہم سے جھکاتے مزاروں پر جا کے. غیر اللہ صاحب نے وہی ان کا شعار ہے. ان کا شعار پہ عمل کرو, کامیاب نہیں ہوگے, اللہ کا عذاب آ جائے گا. قوم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ قوم فرائض سے غافل ہو رہی ہے. شاہ وسیع اللہ صاحب نور فرماتے تھے کہ جب فرائض سے غفلت ہوگی اللہ کا عذاب آ جائے گا. آج کہتے نئے محلے ہیں, نماز سے کوئی تعلق نہیں. ترغیب دینا چاہیے. اسی لیے ہر ایک چیز میں لازم کہنا, ترغیب طور کہو, لیکن پہلے معلوم کر لو اللہ فاضل نہیں, اسی عنوان سے ہوگا. یہ بتا دو کہ یہ نماز فرض ہے ہمیں. جیسے صحت کا بقا بھی واجب ہے. کوئی شخص صحت مند کے بدتری کرنے لگے, زہر کھا لے تو خودکشی ہو جائے گی اس کی. تو جان اللہ نے دی ہے, تم نے اس کو تلف کر دیا. اسی لیے صحت کا بقا واجب ہے ہر ایک کے لیے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, آنکھ کی نعمت کیوں سرما لگاتے ہیں؟
اس میں روشنی میں بقا بھی ہو، دیکھوں گا آرام سے۔ چشمہ کیوں لگاتے ہیں؟ کانوں سن رہے ہیں، ان کی برابر صفائی کرو، دانتوں کی صفائی کرو، یہ میرے چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرو بندہ بن کر، آدمی ان کہتے باقی بن کر۔ ویب سائٹ انٹرنیٹ وہ بےہودہ حرکت دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر۔ یہ چیز کیوں؟ اس لیے کہ تعلم اللہ میں کمی ہو گئی، خشیت میں کمی ہو گئی۔ جب خشیت میں کمی ہوگی تو انسان جو کچھ ہے کرتے رہے۔ اس لیے جب بھی قوم پہ عذاب آیا، نافرمانی پہ آیا، اس زمانے میں نبی نے ڈرایا کہ دیکھو تم ہوشیار ہو جاؤ، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بعد کے دور میں ولیوں نے ڈرایا، ہر دور میں ولی کامل جتنے تھے انہوں نے ڈرایا کہ دیکھو بھائی ہوشیار ہو جاؤ، گناہ سے بچو، بغاوت مت کرو، یہ ہمارا گردی مت کرو۔ وہ قوم کہتی رہے میں مولانے لوگ ہیں یہ تم سیکھ بن گئے، یہ اس لیے کہ تبھی پھر عذاب آ گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نور احمد خطور نے تنبیہ فرمانی دی قلعہ والوں کو، اے شہزادو ہوش میں آ جاؤ، یہ تو اپنے جو افعال جو بد ہے اس سے توبہ کر لو۔ اے مولانے لوگ ہیں کیا جانا ہے، ان کے مذاق اڑاتے تھے۔ ولی کامل تھے، حکیم الامت تھے شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے بیٹے بھی یافتہ مہتاب، تو بار بار تنبیہ فرماتے تھے کہ لال قلعے والوں ہوش میں آ جاؤ، یہ مولانے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا، نادر شاہ درانی نے حملہ کیا، اینٹ نہیں بجا دی۔ جب قوم سرکشی کی اللہ تعالیٰ عذاب آ گیا۔ آج پوری امت گھر میں پریشانی ہے، بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، گھر والے نافرمان، محلے والے نافرمان۔ یہ سوچو کہ مجھ سے کوئی کمی ہے، ان پہ فی نکالتے ہیں، صاحب ان کی غلطی ہے۔ اپنے کو دیکھو میرے اندر کتنے عیب بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اپنے نفس کو برا بھلا کو، یہ تزکیہ نفس، یہ ہے بیعت کے فائدے۔ اور اپنے نفس کو برا بھلا اور نہیں کہہ دے گا۔ امت کا ہر فرد ہم سے اچھا ہے، ہم سب سے گھٹیا۔ آج بالکل الٹا معاملہ ہے، ہم اچھے ہیں، وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہم بے وہ کرتے ہیں اور افعال بکتے ہیں، ان کو بکنا دو۔ تو اسی لیے جب سنتوں میں کمی واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ یہ بھی ہوا میرے شیخ نور احمد خطور فرماتے تھے کہ صلحۂ امت جو کرے تھے علماء کرام، انہوں نے وہ غفلت برتی تو سنت کا ہرے گی۔ پھر تو یقینی جب وہ لوگ رہبر جو ہیں ان کے اندر یہ پیچ پیدا ہو جائے گی تو امت کیسے چلے گی؟ اسی لیے عالم کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی متبع سنت اور ترغیب بھی دے، عمل سے پیش کرے۔ بس بیان کرو، عمل سے کرو، پہلے خود عمل کرو، عمل کے بعد پھر تم جو بات کرو گے وہ تیر و ہدف ہوتی ہے۔ نبیوں نے جو ارشاد فرمایا وہی الہی کے ذریعے اللہ نے حکم دیا تم ان سے کہو، بار بار اللہ قل، ان سے کہیے، خود انہوں نے نہیں کہا۔ ایسی ولی بھی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہی لوگوں ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان کی دولت سے تم سب شاداب ہو رہے ہو، اپنے کو گناہوں سے بچاؤ، کہنا ہے بس، بقیہ کچھ نہیں۔ انگلش میں لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ریپرکشن، جواب دہ ہوتی ہے۔ کوئی اللہ والے پرواہ نہیں کرتے، تم بکتے رہو، خوب گالی بکتے۔ جب نبی کو گالی دی ہے تو ولی کیوں نہیں دیں گے؟ ہر نبی کو ستایا، لیکن کہا تم اپنا کام ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ولیوں کو بہت ستایا، ہر ولی ستایا گیا، گھر والوں نے تان تشنی شروع کر دی، وہ اپنے کام میں لے گئے۔ مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی بہت عالم تھے، بہت بڑے بزرگ، ان کو پہلی آئی آتی ہے سوانے میں تو گھر میں اللہ اللہ کرتے تھے، تو اس سوانے میں ان کی جو بڑی اولاد تھی اسے کہتے پڑے پڑے کھاتے کچھ کرتے دھرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے لیکن یہ کچھ کرتے دھرتے نہیں ہیں بس۔ اس کے بعد غربت تھی ان کی، پھر عسرت کا زمانہ ختم ہوا، یسرت زمانہ آیا فراوانی کا، تو وہی اولاد آتی تھی ان کے اس میں پڑے، تب ناراض رہے کہ وقت
पहले जब कुछ अल्लाह अल्लाह करते थे तुम्हें तो बड़े बड़े खाते हो, अल्लाह ने उस वक्त आजमाया था, कम चीज़ें थी, उसके बाद फिर पूरी दुनिया शोहरत हो गई। उन्होंने सब्र किया, घर वालों ने तान दर्शन, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सगे से चाहे। एक तरफ तो ये मोहब्बत की आलम था कि जब आपकी विलायत हुई तो अबू लहब ने एक लौंडी आज़ाद कर दी फौरन, हमारे खुशी में कि मेरा भतीजा आया है। वही अबू लहब इनके बागी बन गया, उनकी औलाद इनकी बागी बन गई, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किया। एक बात हो जाए तो किसी वली को बुरा भला कहता है, अल्लाह का ग़ज़ब आ जाता है उसके बाद। नबी को जब कहा तो ग़ज़ब आ गया। अबू लहब के बेटे जब सूरत तब्बत नाजिल हुई तो उससे बड़े नाज़ेबा इस्तेमाल अल्फाज से आप शान गुस्ताखी की बद्दुआ दी, क्योंकि सूरत तब्बत यदा में जो है इसमें बदवाई तो है उसके अंदर अबू लहब के। उसके बाद फिर उसका असर हुआ कि इन्होंने आपने फरमाया अच्छी बात, ये तो हलाक हो जाएगा। उसको लोग बड़े उससे रखते थे, प्रोटेक्शन में थे, प्रोटोकॉल होता था उसका। सब लोग जाते थे काफिले में तो उनको बीच में रखते थे और पूरा घेराबंदी करते थे, कोई इन पर हमलावर ना हो। गए सफर में रात का वक्त था, सब लोग बीच में बिल्कुल बहुत हिफाजत की जगह थे। एक शेर आया, इन्हीं को उठाया और लेकर चला गया। जिन जिन वलियों के लोग बुरा का बुरा अंजाम हो उनका। इसीलिए इससे मैंने सलाह किया, हर मोमिन वली है, इसीलिए मोमिन बुरा नहीं कहो। बीमारी किसको नहीं लगती, बहुत माहिर डॉक्टर है लेकिन बीमारी लगी उसके अंदर, अल्सर उसको होता है, कैंसर उसको होता है, जितनी अमराज हैं उसको लगते हैं, है माहिर, सब कुछ जानता लेकिन अब मजबूर है वो। इस तरीके से वो जो है, ऐसे ही इंसान जो है हर वली ईमान छुपा हुआ उसका, किस वक्त ज़हूर आ जाए ये अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। इसीलिए किसी मोमिन बुरा मत कहो। आज हम मुंह फट बुला भरा करते रहते हैं। एक मर्ज मुब्तला हो गया, ये बिदअत एक मर्ज हो गई, उसको बुरा मत कहो। दुआ में अल्लाह ताला आप इनको हिदायत देती है। ये थोड़ा सा है दूसरे रास्ते चले गए, आपके अख्तियार में है, नहीं कि बुरा भला कहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ आपने फरमाया कि जितनी भी बिदअत है वो ज़लालत है, गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम का रास्ता है, ये तो नबी का है। उनको तलकीन करो, हिदायत की दुआ भी करो, सीधा रास्ता बताओ, पेश कर दो, बस काफ़ी। ये नहीं सब इन्हें मानते नहीं, मैं सुनते नहीं, सब तुम्हें नहीं, ये तो हफ्ते कोई दारोगा हो तुम, हाँ मर्ज हो गए, हमारी बात मानो, ठीक है, उन्वान से समझाओ। एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे की आदत थी सिगरेट पीने की, तो उन्होंने कहा कि इनको कैसे रोका जाए। उन्होंने ये तय कि मैं तो धमकाऊंगा, न मारूंगा, न कुछ कहूंगा, समझाऊंगा। यह हिकमत अमली। उन्होंने समझाना शुरू किया, एक बार दो बार कुछ नहीं असर, 50 बार कोई असर नहीं, 100 बार तक करा, कोई असर नहीं हो रहा उनको। और ये बड़ा है बेटा, अच्छी चीज नहीं, फेंक देना। जब 101 बार का उसे फौरन डिब्बी फेंक दी उससे। कहो लेकिन उन्वान बराबर कहो, वो ज़कीर लज़ाइक़ कुरान पाक कर, बार बार कहो, उनको नफा पहुंचेगा। इसीलिए कुरान पाक के अंदर है, मुकर्ररात कहते हैं उसको, एक उन्वान को अल्लाह ताला कई जगह बयान फरमाया। एक ही बात काफी था, ज़हन नशीं हो जाए। नबी ने एक बात को कई बार फरमाया ताकि ज़हन नशीं हो जाए। गुनाह से डराया, बार बार डराया, एक बार डरा देते, मुसलसल डराया आपने, आखिरी उम्र तक डराया। पर ये कहता है फिर आपने फरमा दिया, क्या मैं तुम्हें बात नहीं पहुंचाई? हजरत उलदा में आपने ऐलान किया था, सब ने कहा भला बेशक पहुंचा दी बात, बस के मैं अब इतना हो गया। हर वली, हर अल्लाह वाले जो होते हैं वो चाहते हैं मेरी बात को उनको सुने, अमल करें, खुद भी शामिल होते हैं और चाहते हैं इनके अमल का जज्बा पैदा हो जाए। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल नहीं। दीन की इशाअत तलवार से कभी नहीं हुई। ये लोग गलत बदनाम करते हैं मुसलमानों को कि इस्लाम तलवार से पहला, गलती की बात है। उनके किरदार से पहला, उनके कैरेक्टर से पहला,
صحابہ جس میں جاتے تھے उनके देखते थे, उनके चीज़ों को, मामलात को ईमान ले आते थे. आज हम जाते हर मिनट मारे पीटे जाते हैं, भगाए जाते हैं. अभी वाकया है, चाइना में साहब गए, खुद मुझसे उन्होंने बयान किया, कहने लगे कि वो मामला तय हुआ तो पैसे भाई इंशाल्लाह हाथ सामान ले लिया उन्होंने. कहा भाई क्या बात हो गई? कहा ये लफ्ज़ से पहले साहब और आए थे, इंशाल्लाह दूंगा, अब तक नहीं दिया पैसे. ये मुसलमान, धोखा देना, वादा खिलाफी करना, वादे की पाबंदी करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वादे खिलाफ. अल्लाह ताला का वादा खिलाफी तो मना है, सख्त संगीन जुर्म है. और कहते हैं उज़्र हो इत्तला कर दो, पैसे वक्त नहीं है अभी इत्तला कर दो, मोहलत मांग लो. आजकल तो बजाय मोहलत क्या डांट डपट, क्या मैं खा के जाऊँगा, क्या भाग जाऊँगा, बजाय कि उसे माजरत करते ये ऐसे कलमात क्यों, इसलिए तस्कीर नफ्स नहीं किया, नफ्स के वो पाबंद हो गए. इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो. इसीलिए आपने फरमाया, बहुत छोटी सी नसीहत है, नजात किसने पाए, कौन पाएगा? जो खामोश रहा. मन समेत नजा, जो खामोश है वो नजात पा जाएगा. इसलिए कि इंसान कोई बात पेश आ गई, उसके जवाब शुरू हो गया, बस यहीं से लड़ाई शुरू होती है, गाली गलौज शुरू होती है. और यहीं से तहम्मुल कर लो. हमारा काबिल करके दिखा दिया. बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अहमद के बाद कबीर रफ़ी नौर हमारा कदम, ये औसुल्लाह ख्वाजा शादुल कादिर जिलानी के खराद भाई भी है, अब बहुत कामलीन में से थे. एक औरत ने कहा वो रियाकार, आप खड़े हो गए, और ना तुमने मुझे सही पहचाना, तुमने मुझे पहचाना, और लोग धोखे में हैं. मुझे ये कहते वो चूल्हे लोग कभी नहीं, तुमने क्या कहा मुझे, क्या उनके मुतालिक कहते हैं, क्या तुमने सही पहचाना, मैं इस लायक हूँ. इसी वाक़े में कहा है कि तशरीफ ले आते, किसी औरत ने राख फेंक दी, तो ज़ाहिर ऐसे मौके पर बुजुर्ग भी हो तो बजाय कुछ कहने के शुक्र अदा किया. और ये अल्फाज से उनके, हे अल्लाह, ये सर जो था आग बरसाने का लायक था, इस पर राख बरसाएगी, काबिल शुक्र है. जिस सर को काबिल आग बरसाने का था, उस पर राख बरसाई गई. ये तामुल कैसे पैदा हुआ? तस्कीर नफ्स से, अपने आप को गुस्से से कंट्रोल करना पड़ना. तस्कीर नफ्स बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये बहुत मुश्किल है. बाज़ अमराज ऐसे होते हैं कि अतिबाजी आ जाते हैं, तो ये कहते हैं भाई इन लोगों को ऐसा इनसे अंदर की ख़त्म हो जाए. कितने वाक़यात होते रहते हैं कि ये जो इनकी तड़प लगते हैं. यहाँ तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार है. कितना माहिर डॉक्टर होगा, अगर पैर में गैंग्रीन हो गया, कटाना पड़ेगा पैर उसको. कितने लोग पैर बचाते थे वो, और खुद कटवा रहे पैर. अज़ा की अहमियत, इसीलिए मेरा दावा है, कोई अल्लाह वाला बनना चाहे तो साइंस पढ़ ले, 100% अल्लाह वाला बन जाएगा. लेकिन हम साइंस पढ़ते नहीं, पैसा मिले हुदा मिले, ये साइंस का मौजू है. अरे अल्लाह के बंदे साइंस पढ़ो मार्फत के लिए. और सबसे आला साइंस के जो निज़ाम है पूरे, वो इल्म नब्तान है. दुनिया में जितने साइंस के मज़ामीन है, इंसान में मौजूद है. केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है. 8 मज़ामीन इसके अंदर है, इंसान के अंदर. ये मुरक्कब इंसान, इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. ये साइंस ऐसा अच्छा गुमराह नहीं होगा फिर, इसलिए कि अनाहुद नहीं हो सकती. हम खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे खाना किस कैपेसिटी में जाता है, और उससे क्या फंक्शन होते हैं, ये साइंस. ये हम लोग इसलिए अल्लाह वाले बनना चाहते हो, साइंस पढ़ लो, 100% अल्लाह वाले बन जाओगे. हम लोग साइंस पढ़ते हैं, पैसा चाहिए मुझको. अमेरिका जाना, लंदन ना, क्यों वही डिग्री यहाँ मिलेगी? नहीं, नाम हो जाएगा. अमेरिका से PhD करके आए तो DSC किया अमेरिका से जाके, बहुत बड़े सर्जन, ये वो, क्यों पैसा मिलेगा? अभी मेरी हैदराबाद हाजिर हुई थी, एक न्यूरो सर्जन मुलाकात हुई, वाकई बहुत जी भी खुश हुआ. पूरे हिंदुस्तान के 2 बात ऐसी उनके पास डिग्री है, एक वो, एक और साहब है भैया. लेकिन शरीदारी मौलवी साहब लगते बिल्कुल दीन में लगे, और बेहतरीन न्यूरो सर्जन है वो.
लेकिन ये जब हमने अर्ज किया कि साइंस को मार्फत के लिए अल्लाह वाले बन जाओगे, और गौर सुना उन्होंने उसके ऊपर, फिर दोबारा मुलाकात भी आई। तो क्यों है पूरे ना ही पूरे हिंदुस्तान के तब हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेज है हिंदुस्तान के अंदर, वो कंसल्टेंट है बुलाए जाते हैं एम्स के वगैरह में, जितने भी हैं और मौलवी साहब लगते हैं बिल्कुल। आज हम लोग अरे क्या मौलवी साहब मुल्ला जी बने हुए, शरीफ बदा कता बना लो बस, ये वो कौम मालूम नहीं हो दोनों सारा, उसने वो किया कि तुम क्या है अप टू डेट बनो, पैंट शर्ट पहनो, टाई लगाओ, तब मालूम तो हो कि ये डॉक्टर हैं। ये तो जाहिर वजह कथा तुमने उनकी इत्तेबा की, ये कैसी बात है? जो नबी की इत्तेबा करेगा वो कामयाब हो जाएगा। दिल इल्म तो अल्लाह को अता फरमाया, दिमाग अल्लाह ने अता फरमाया है, कपड़े कोई खूबी नहीं है। आज हम लोग इससे बिल्कुल खिलाफ कर देते हैं। जरा सा भी शरीर लिबास हो गया है, वो क्या मुल्ला जी है, क्या मैं शलवार पहन लिया तुमने, क्या लंबा कुर्ता पहन लिया, क्योंकि वाकिफ नहीं है सिर में, इस सब्जेक्ट से वाकिफ नहीं है वो। पूरी हाइजीन इस्लाम के अंदर है, पढ़ो तो इसको पहले। तो जहाँ जहाँ फसादात होते हैं इस किस्म के, आपस में टकराव होता है, जबान की वजह से होता है, अपनी तो इस्लाह की नहीं, जो मुँह है बढ़ दिया, गरम नरम। इसलिए मैंने हिदायत किया खवातीन आती दोनों आपस में, शौहर बीवी का, देखो ये जुमला याद कर लो, जब ये नाराज हो तो मुस्कुराते रहो, जब तुम नाराज ही मुस्कुराते रहे। कभी भी टकराव होएगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, टकराव नहीं होगी। फिर ये तहम्मुल अल्लाह वाले सोबत से होता है। जितना उनके पास होगे उतने फिर टकराव शुरू रहेगा। तो आज हमारे अंदर टकराव पैदा हो रहे, लेकिन टकराव जो है उसे वहाँ नहीं जाते, अल्लाह से डरते नहीं, अल्लाह का काम अमल नहीं करते, और कैसे हम लोग अल्लाह मुसलमान हैं ये सोचते। अफसोस की बात है ये, पहले मुसलमान खरा था, खरा सोना था, कैरेट नहीं था उसके अंदर, हर एक जगह उसकी, जैसे डॉलर है खरा माला है डॉलर, दुनिया में डॉलर डुप्लीकेट नहीं चलेगा, और सारी दुनिया उसको मानती है, पाउंड से सारी दुनिया मानती है। यहाँ सिक्का नहीं मानी पूरी दुनिया, किताब ये भी चल जाए, हिंदुस्तान का सिक्का पाकिस्तान का कभी नहीं, ये स्टैंडर्ड कहलाता है, रियाद स्टैंडर्ड कहलाता है, इनमें खरा माल है, क्योंकि तो वो है कागज, उसके बदल में है सोना तो रखा हुआ है। ऐसी मोमिन जो है जब दीन से फिरेगा तो कभी डुप्लीकेट हो जाएगा वो। आज पूरे कौम पे अज़ाब आ रहा है। इसीलिए हम कैसे मुसलमान हैं कि नमाज का एहतमाम नहीं करते, तक़वा का एहतमाम नहीं करते, गुनाह से बचते नहीं, खाना पीना हराम, हर जगह जा रहे, दावत में जा रहे, सब कैसी रोजी उनकी, सूदी लेन देन नाम, खूब कॉन्फ्रेंस बना रहे, लोन ले रहे, ये कौन से वो है, पूछा रहे क्या मुल्लापन है क्या, तुम अपना काम करो, उनको वक्त में धोइए ऐसे जुमले, कब तक क्या रहोगे तुम, किस वक्त मामला पेश आ जाए। इसीलिए आप तो फरमाया कि मुखातिब साहबी को कि देखो जब सुबह हो तो शाम फिक्र मत करना, जब शाम हो तो सुबह फिक्र मत करना, अपने आप को ऐसा कबूल शुमार करो, कब वक्त पूरा हो जाए मालूम नहीं। अभी हमारे बहुत बुजुर्ग करीब इंतकाल हुआ है, माना वाज़ साहब नौरा मरकदू का, तहज्जुद नमाज पढ़ी, कोई बीमारी कुछ नहीं, फजर के लिए उठे थे तो उस सीने तकलीफ महसूस की, सलर कर दी, वज़ू किया, सीना सहलाते रहे, उसका कलमा पढ़ते रहे, लेट के अल्लाह प्यार हो गए। कितनी प्यारी मौत उनकी हुई है, जो उन्होंने शुरू कलमा तैयबा का जिक्र किया, नमाज की पाबंदी कर दी, अल्लाह ने महरूम नहीं किया। आज हम लोग गाली गलौज बकते रहे, बुरा भला करते रहते हैं, ये कौन सी अक्लमंदी है। पेट में हराम माल चला गया, तुम्हारे हराम माल या पेट में जाएगा, ऐसे अल्फाज सरजद होंगे। खुद अपने भी देखो, हमारे अंदर के ऐब भरे हुए हैं, दूसरे बुरा भला नहीं करते, अपने नफ्स के बुरा भला को। ये थे पहले बैत के फायदे। बैत होने से फायदा था कि हम तस्कीर नफ्स करेंगे, अमाल की दुरुस्ती करेंगे और दीन में पुख्तगी अख्तियार करेंगे। आज तो सिर्फ रस्मी बैत हो गई, हम फना से बैत हुई, कौन सी अक्लमंदी तुम्हारी, ये रूहानी इलाज कहते हैं उसको, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, उसकी इत्तेबा भी करते हैं। ये परहेज करना, ये दवा खाना, वक्त बताते हैं, परहेज बताते हैं, वही कामयाब होते हैं। दवा में भी हेरा फेरी कर दो, वक्त बदल दो, फायदा नहीं करे, वही दवा है।
बताते हैं ये खाली पेट कोई भरे पेट खा ले, क्या दवा तो पेट चली गई, अफान खत्म हो जाएगा उसका। ऐसे ये जो है दीन के बारे में जो शायद ने बता दिया, ये वक्त ये काम करना, बस हमें नहीं कि इस बारे में इसमें क्या हर्ज क्या है। लोग कहते हैं क्या हर्ज क्या है, ये हर एक नबी की मुखालफत की। टकने ढकना हमारा हराम का करार दिया, क्या कि इसमें क्या हर है रखने ढकने में, उनका हर अलग है। हम तो प्रूफ साबित करते हैं, बहुत हर पूरी हाइजीन इसके अंदर है, साइंस पढ़ी है। अब ठीक है तो हमें कुछ बहस नहीं, नबी ने बता दिया काफ़ी। आपने फरमाया देखो हरगिज बाएं हाथ से खाना पीना नहीं, ये शैतान का शिहार है। आज हम लोग चाय पीते हैं बाएं हाथ से, खाना खाते हैं बाएं हाथ से, जबकि ताकीद एक तो उज़्र है, कोई उस पर मुस्तस्ना हो गया, हाथ में तकलीफ है और भी वो चीज़ें हैं, कोई हरी बात नहीं। अच्छी हालत में मना किया है कि बाएं हाथ से हरगिज लफ्ज़ है। एक तो नहीं मत खाया करो, नहीं हरगिज मत खाओ, बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का हुआ। तो ये चीज़ें दीन क्यों रुखसत हो रहा है, दीन का माहौल घर में नहीं आ रहा है, हमारा ताल्लुक अल्लाह वालों घट रहा है, और दीन में कोई चर्चा नहीं, अल्लाह की कुछ बात। इसीलिए शेख ने जो लिखी फ़ज़ाइल अमाल क्यों लिखी, इसके पढ़ोगे कुछ तो का असर होगा। आज सिर्फ पढ़ते रहते अमल क्यों नहीं होते, नियत तो दुरुस्त कर लो अपने। शेख क्या फरमाते हैं, और शेख ने अपनी बात नहीं की, हदीस की है, कुरान पाक की बात है। पढ़ो तो उसको लेकर अमल के जज्बे से, सुनो अमल के जज्बे से। कितनी बार हमने पढ़ते हैं फ़ज़ाइल अमाल, अमल में क्यों कोताही हो रही, बस सुन तो लिया, इसमें सुनो की तरगीब दी है इसमें कि तुम भी ऐसा करो, इस शहर इस्लाम तरगीब है, तुम भी अमल करो। ये है सर मकसद इसका। घर में किताब का इजरा होना चाहिए, इसीलिए और थन मसाले के बारे में महसूस लिखा है, पूरे घर में होना चाहिए। इसके ये मसाइल औरतों के कैसे बताए जाए, कितनी ख़वातीन जानती न मसले से, मवाक़िफ़ है। इसीलिए बहस हुए लिखा भाई, तुम नहीं पढ़ते इसे पढ़ लो, अरे पूछ लो। घर में बेहयाई का फाल हो रहा है, वो कोई रोक टोक करने वाला नहीं। इसीलिए खुद भी परहेज करे तरगीब के तौर पर। एक तो डांट डपट करना, फलाने मत जाना, ये हुक्म हो गया। एक और देखो शरीयत खिलाफ बात हो रही है, हम तो नहीं जाएंगे, अब तुमको अख्तियार है। ये आसान है, ये है तज़किया नफ्स। उसने सांप मर गया, लाठी जुड़ी हो, कबार बैठा दो उसके अंदर। एक खातून ने एक शौक से जाए कि सिनेमा देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने फरमाया कि ये नहीं कहा कि क्या कहा तूने, गुनाह की बात तुम कहती हो, ये कुछ नहीं कहा ठीक है। फिर कबाहत बयान कर दी उसकी, और ये नहीं कहा कि मत जाना यार, कुछ नहीं कहा, बस कबाहत बयान कर दी, नहीं गए। हिकमत अमली इसको कहते हैं। जो शख्स तस्कीर नफ्स करेगा, अपनी इस्लाह करेगा, ऐसी कलमात कहेगा, मना नहीं करता, खुदा रोका थोड़ी, उसने नाफरमानी कर दी, फिर वही गुनहगार तुम ही गुनहगार। इसलिए करना हिकमत अमली। तो एक तो ये कि जो वक्त गुजर गया वो तो आने से रहा, जवानी गई अब नहीं आ सकती। आजकल पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, झुर्रियाँ बदला लो अपने गाल के, पेशानी की, कान की, बिल्कुल झुर्री बदल जाती है, पूरी सर्जरी आ गई प्लास्टिक सर्जरी का। बाल को डाई करा लो, ये तो डुप्लीकेट है, क्या वैसे खुद आ सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने उनको उसी वापस कर दिया, किस पर, यानी जैसे ही थे बचपन में, इसी चल रहे थे। बुढ़ापा और बचपन दोनों बराबर हो जाता है, माजूर होते हैं। तो एक तो ये कि नमाज का एहतमाम, तिलावत की पाबंदी। उम्मत तिलावत से काफ़ी, अभी तिलावत जितनी गलत करती है, इससे कोई चर्चा नहीं है। एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्या वही इंग्लिश है, उसको सही तलफ़ुज़ सिखाते हैं और लोग उसी तरजीह देते हैं। मेरा बेटा या बेटी कॉन्वेंट पढ़ेगा क्योंकि तलफ़ुज़ ठीक हो जाएगा उसका। आज हमारे बच्चे मकतब में जाते हैं, खुद भी मौलवी साहब जानते नहीं, वाकिफ़ नहीं, तो ही पढ़ाएंगे और पैसे बहुत कम। कॉन्वेंट में कई 1000 खर्च करेंगे और मदरसे 100 रुपये नहीं देंगे। एक हमारे साथी दोस्त है प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी माशा डॉक्टर भी हो चुकी है, उन्होंने कहा मैं ऐसे करूँगा। तो जो ट्यूटर आते थे उसने उससे अपने मौलवी साहब रखे ना, और बहुत मोटी रकम देते थे,
کہا یہ محنت پڑھائیں گے بھی اور صحیح پڑھائیں گے. آج ہم لوگ بخل کرتے ہیں. جتنے مدارس ہیں بیچارے کفارت کرتے ہیں پھوکٹ پڑھائی اور پھوکٹ میں بالکل ہم قدردانی نہیں کرتے. کوئی کانوینٹ اسکول میں پھوکٹ پڑھائی نہیں ہوتی ہے. درجنہ بھی زونہ پیسے جمع کرو اور مدرسے میں کچھ جمع نہیں کرنا. اور کیا ہے ملا بنوانا ہے. تم کو جہنم سے نکالنے والے امان بتا رہے ہیں. اب اس سے عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے لیے جو باری تعالیٰ بار بار ہوتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا یہ مقصد ہے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. جتنا گناہوں سے بچاؤ گے، طاعت پہ لگو گے، اتنے دن میں نور پیدا ہوگا. طاعت سے رغبت، گناہ سے نفرت. دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ